CH3C double bond. Yes, it is CH3C double bond O. Students try to understand, n number of times I have said it out. Acid group आएगा तो ये वाला group आना ही चाहिए. If they are using the word acid, अगर aldehyde बोला तो H आएगा, so the name becomes acetaldehyde. Ketone रहेगा तो क्या नाम बनेगा ये compound का? Common names we are talking about. Yes, what is the name of this compound which I have drawn here? Dimethyl. Common name. Acetone. Acetone. It is ketone. Acid group आ रहा है इसलिए वो नाम acid से start हो रहा है. अभी यहाँ पे कौन सा functional group है? Hydroxyl. Hydroxyl नहीं है. It is carboxylic acid. Yes. So what is the name? What is the common name of this compound? Acetic acid. Yes, it is acetic acid. So the ये group का नाम acid है. So बार बार वो acid करके आ रहा है. Now it depends upon the functional group. Aldehyde रहेगा तो acetaldehyde. Ketone रहेगा तो acetone. Acid रहेगा तो acetic acid. In the same way, this group CH double bond O. अब आगे भी H लिख सकते हो, no doubt. This group is known as formyl group. तो जब भी ये ग्रुप किधर भी आप ऐड करोगे तो वो रिएक्शन को भी कॉल इट एज फॉर्माइलेशन रिएक्शन. इन द सेम वे इफ ओके आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर. इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Aldehyde. Yes, it is aldehyde. So what is the name, common name of this compound? Formaldehyde. Yes, very good. It is formaldehyde. Clear? If I am putting, okay, what is the functional group here? Carboxylic acid. Yes, it is acid. So इसका common name क्या आएगा? Formic acid. Formic acid. Yes, it is formic acid. क्यों ये form word use किया गया? Because Formyl group. Group is formyl group. वैसे ये group का नाम acid है इसलिए common names वैसा derive होते जाएगा. Same way, Gattermann-Koch reaction is nothing but formylation reaction. तो आपकी ये फॉर्माइल ग्रुप बेंजीन में दिस इज नोन एज फॉर्माइल ग्रुप, ये बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना है. तो ऐसे ही तो इंट्रोड्यूस सिर्फ लगा दिया तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ऐसे नहीं होता है. We need some reagents here. So in this case, we are going to use carbon monoxide plus HCl. In presence of HCl, the reaction takes place. And the Lewis acid, you can use anhydrous AlCl3 or cuprous chloride. So we have seen the mechanism, I guess, कि यहाँ पे जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट होता है तो you get formyl chloride which is highly unstable in nature, and then it reacts with benzene in presence of anhydrous AlCl3 to gives you benzaldehyde. This we have started in the last lecture. So mechanism में what I have said, जब भी एक bond जिसके पास कम रहेगा, I'm not talking about electrons, I'm talking in terms of bond. जिसके पास bond कम उस पे minus charge, जिसके पास bond ज्यादा उस पे positive charge. So this is the Lewis dot structure of carbon monoxide. Clear? Carbon monoxide में carbon पे negative charge ही होगा and oxygen पे positive charge. Think in that terms कि कार्बन के पास बॉन्ड कम है इसलिए उसका 4 वैलेंसीज है, राइट? तो उसके पास बॉन्ड कम है, सो इट इज गेटिंग माइनस चार्ज. ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए था, डाइवैलेंट, बट उसके पास ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज. नाउ दिस ऑन रिएक्टिंग विद HCl क्या होगा? ये HCl, H इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे ही करेगा. तो बट ऑब्वियसली कार्बन पे इट विल गो. बराबर कि नहीं? हेलो, हाँ, वो इस पे ही अटैक करेगा. तो यहाँ पे H आ गया. देन यू हैव C, ट्रिपल बॉन्ड इज एज इट इज, डबल बॉन्ड O. अभी आई नो कि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, उसको अपना स्टेबिलिटी फिर से चाहिए. तो स्टेबल बनने के लिए, इट इज हाईली अनस्टेबल, उसके पास अपना पॉजिटिव चार्ज वैसा का वैसा है, तो वो क्या करेगा? एक बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा. 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड आने के कारण उसका चार्ज निकल गया. सो यू हैव गॉट दिस कंपाउंड फॉर्माइल क्लोराइड HC डबल बॉन्ड O, राइट? और C पे चार्ज पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये बॉन्ड चला गया, C ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. उसका चार्ज न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे जो Cl बचा था वो रोल में आ गया और उसमें अटैक करके आपको फॉर्माइल क्लोराइड दिया.
In the next step, you need to generate some electrophile जो बेंजीन पे जाके अटैक करेगा. So in this case, formyl chloride will react with Lewis acid, which is an electron deficient species. ये क्या करेगा? Cl अपने साथ लेके जाएगा और electrophile generate करेगा. That is HC double bond O. और इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4. बराबर इतना तक. एंड इन द लास्ट स्टेप सेम वे जैसे अपने अपन बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं. सी यू कैन यूज दिस बॉन्ड. यहाँ किधर भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे आपको जिधर चाहिए उधर. बट फॉर कन्वीनियंट पर्पस आई एम ड्रॉइंग इट हियर. अभी क्या होगा? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल. वी नो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है कि डेफिशिएंट? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और डेफिशिएंट? Deficient. Yes, it is electron deficient species. तो उसको electrons का जरूरत है. And we know benzene ring is acting as a very good nucleophile. उसके पास डबल बॉन्ड 6 pi electrons है, तो उसके पास भर भर के electrons है. तो डेफिनेटली अटैक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को करेगा. बट हमेशा एरो रिच टू पुअर दिखाया जाता है. जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है वो स्पीशीज टू एरो पुअर की तरफ. भी इसने अटैक किया तो ये बॉन्ड अपने यूज किया है. तो ये बॉन्ड में आप कार्ब यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हो या ये वाले कार्बन पे. इट्स वन एंड द सेम. तो आई हैव पुट इट हियर. क्लियर? तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चला गया. तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट? ये कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? इसने अपना इलेक्ट्रॉन से कार्बन ने दिया है. हाँ, तो ये कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव. क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रॉन्स दिया है ना, बॉन्ड कम हो गया ना. हाँ बॉन्ड कम हो गया है. बट अपना इलेक्ट्रॉन्स नाउ हियर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे उसने अपना सी दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल. बराबर, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल. सी कार्बन मोनोऑक्साइड इज द डिफरेंट स्पीशीज. उसके केस में टोटली अलग है. Okay, miss. इन दिस केस यहाँ पे बेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है इलेक्ट्रोफाइल को. सो ये वाले कार्बन ने कंट्रीब्यूट किया. सो इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स चला गया, सो पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे ये ग्रुप अटैच हो गया. सी अभी इसको ये क्या बन गया? एरोमेटिक से क्या बन गया? ये स्टूडेंट्स एरोमेटिक से क्या बन गया? ये नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक. Allyl. और स्टेबल. अभी ये क्या बन गया? Unstable. अनस्टेबल. बेंजीन खुद एक स्टेबल स्पीशीज था. अनस्टेबल. तो यूजुअली जब भी स्टेबल टू अनस्टेबल कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वो फास्ट होगा कि स्लो होगा? Slow. Slow. तो दिस इज स्लो स्टेप. एंड यूजुअली इन एनी रिएक्शन जो भी स्टेप स्लो होता है वही आप स्टडी कर सकते हो. तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज RDS. तो यहाँ पे तो ये हो गया. अभी ये कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन्स फिर से चाहिए, या वी कैन से कि बेंजीन को अपना एरोमेटिसिटी फिर से चाहिए. नाउ हु विल कम इनटू द पिक्चर? कौन हेल्प करेगा बेंजीन को अपना एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने के लिए? Oxygen carbon pair. नो, लुक एट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली. ये कार्बन बैलेंस है क्या? इसका बैलेंस ही कितना है देखो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन जहाँ पे वो फॉर्माइल ग्रुप मैंने अटैच किया है. What is the valency of that carbon? ये स्ट्रक्चर में कितना आ रहा है? 3. 3. But is it 3? यहाँ पे we are see in the benzene ring we are not putting hydrogen atoms. तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? एक हाइड्रोजन होगा. सभी जगह पे हाइड्रोजन होता है. इन द सेम वे ये कार्बन पे भी हाइड्रोजन होगा. अभी क्या होगा? इसको अपना एरोमेटिसिटी चाहिए. तो दिस कार्बन विल सैक्रिफाइस इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. अभी हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स देके निकल गया. अभी यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन तो निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन्स देके, तो हाइड्रोजन पे था चार्ज पॉजिटिव, राइट? बट यहाँ पे Cl भी तो था पिक्चर में. यस और नो? यहाँ पे जो Cl एक्स्ट्रा है वो फिर से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और HCl करके बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा. एंड योर मेन प्रोडक्ट विल बी, सी दिस बॉन्ड इज एज इट इज. ये वाला बॉन्ड एज इट इज है. यहाँ पे फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है.
and this group you have attached. So the name of this compound is benzaldehyde. See, in the exam, no one is going to ask you the mechanism, but आपको mechanism पता, because in the textbook they have not given the mechanism as such. But for understanding purpose, it is needed कि mechanism कैसे होता है exactly. So is the Gatterman-Koch reaction clear to you all? Any doubt in the reaction? सब सो रहे हैं. वो एरोमेटिक कैसे बन What's happening is benzene on reacting with carbon monoxide plus HCl in presence of anhydrous AlCl3, कोई भी Lewis acid ले लो, gives you benzaldehyde. Clear? अभी क्या हो रहा है? First step, this carbon monoxide is reacting with HCl. अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ देखोगे तो we know in कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन is carrying नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो H जो है रिएजेंट में, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. तो डेफिनेटली ये इस पे ही अटैक करेगा कार्बन पे, तो आपको मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड O. O का पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, उसको अपना स्टेबिलिटी चाहिए, तो इट इज गोइंग टू पुल दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये तो न्यूट्रल बन गया, बट कार्बन पे चार्ज उसने पॉजिटिव दे दिया. तब ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कौन न्यूट्रलाइज करेगा? जो Cl बचा है यहाँ पे माइनस, दैट विल कम इनटू द पिक्चर एंड यू विल गेट फॉर्माइल क्लोराइड. तो हमेशा याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद HCl गिव्स यू फॉर्माइल क्लोराइड. बाकी सब रिएक्शन इट इज जस्ट लाइक फ्रिडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन ओनली. So again we need to generate some electrophile. So formal chloride will react with Lewis acid. It is an electron deficient species. तो ये Cl अपने साथ लेके जाके AlCl4 बनाएगा और HC you have generated the electrophile in this reaction, that is formyl group. Now this formyl group will attack the benzene. See, now try to understand कहाँ पे भी attack हो सकता है. अभी I am taking this, तो ये वाले कार्बन का उसने, this is electrophile, this is electron deficient species, it is going to attack the benzene ring at any position, it can attack. तो यहाँ पे उसने अटैक किया, इसका बॉन्ड पेयर्स उसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ ले लिया. इधर मैंने दिखा, ये कार्बन को दिखाओ वो ग्रुप, या ये कार्बन को, इट्स वन एंड द सेम. आई हैव प्लेस्ड इट हियर. अभी क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक बन गया, ये स्टेबल था, ये अनस्टेबल बन गया. So we know usually जब भी stability to unstable होता है तो it is a slow step reaction. तो ये फॉर्म हो गया. अभी इसको अपना aromaticity फिर से चाहिए, it wants to become stable. तो ये इससे ये कन्वर्जन हमेशा फास्ट होगा, ये स्टेप फास्ट स्टेप. तो अब ये कैसे होगा, किसी ना किसी को तो इलेक्ट्रॉन्स देना है ये कार्बन को. तो यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी कार्बन को हाइड्रोजन होता है, वी नो, वी आर नॉट राइटिंग इट आउट बट इट इज प्रेजेंट बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. तो ये we have attached, ये hydrogen comes into the picture, it gives the electron to this carbon. तो यहाँ पे bond formation हो रहा है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे और ये फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया. सो बेंजल्डिहाइड. कार्तिक, इज दैट क्लियर विथ यू नाउ? हैव यू अंडरस्टूड? ओके. So Gatterman-Koch reaction we have completed. We have started with Itard reaction. If you remember कि toluene का conversion अगर benzaldehyde में करना है तो कौन सा ये reaction याद है? Itard reaction. Itard में we have used chromyl chloride. So this was a conversion from toluene to benzaldehyde. दोनों use कर सकते हो. या तो एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइक्लोराइड एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 273 to 283. या यू कैन यूज क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. दिस रिएक्शन ऊपर वाला कार्बन क्लोराइड का प्रेजेंस में भी कॉल इट एज इटार्ड रिएक्शन. सो क्लियर विथ यू ऑल? Now one more reaction is remaining, we'll see. Okay. From toluene only.
This is fourth one. Okay. See, if I'm doing the chlorination reaction, it means which reagent you're going to use? Chlorination bola to? Yes, students. If I'm telling the reaction is chlorination, so what you're going to use? टोलिन को आप किसके साथ रिएक्ट करोगे? Cl2. Yes, that is Cl2 वाला reaction, right? Cl2 के साथ. But okay. If I'm putting this, क्या होगा रिएक्शन? या Fe आएगा या FeCl3 दिया, चलो, या AlCl3, क्या होगा रिएक्शन? What do you think? Anyone knows So the dark answer? क्या है? एक H निकल के C लगेगा, कहाँ पे लगेगा एक H निकाल के? पर टोलिन का CH3 में, इसका कार्बन में आशी, बेंजीन का CH3 में एक H निकल के. See, जब भी क्लोरीन, if you observe this reaction properly, okay, डार्क क्या है? डार्क कंडीशन में होगा. दिस इज नॉट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नॉर्मल रूम के अंदर होगा. दे विल सी टू इट कि नो सनलाइट इज एंटरिंग इनटू द रूम. तब ये रिएक्शन कैरिड आउट होता है. सी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ टोलिन प्रॉपर्ली. आई नो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे 2 H सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. कौन से 2 H सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज क्या क्या है सब्स्टिट्यूशन का? एक Cl उधर जाएगा Fe के पास उधर, और एक Cl जाएगा इधर बेंजीन रिंग के पास. नहीं, व्हाट यू सी, माय क्वेश्चन इज कि टोलिन में, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बट 2 H सब्स्टिट्यूट कौन सा? तो अभी 2 अलग अलग H रिप्रेजेंट कर रहा है. कौन सा 2 अलग अलग H है? हेलो, बेंजीन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है? ये सॉरी, टोलिन में. सी आकांक्षा, ऑर्थो एंड मेटा तो बात, यस ऑर्थो एंड मेटा, बट बी प्रिसाइज विद योर आंसर ना, कि यहाँ पे कौन सा H अलग अलग है. सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर बेंजीन में क्लोरीनेशन हो रहा है तो इन दिस केस एक H या तो इसका रिप्लेस हो सकता है, दैट इज मिथाइल ग्रुप का, या H बेंजीन रिंग का भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है. दोनों रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी कौन सा H कब सब्स्टिट्यूट करना है? कि बेंजीन का H आपको सब्स्टिट्यूट करना है Cl से, कि टोलिन जो मिथाइल ग्रुप है विच इज अटैच्ड टू बेंजीन, उसका H आपको सब्स्टिट्यूट करना है. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन. नाउ इन दिस केस व्हाट कंडीशन आई हैव गिवन यू आउट, it is Fe, or they can give you FeCl3 in dark. This reaction you have studied in the topic halogen derivative, that is electrophilic substitution reaction. Now in this case what is going to happen is बेंजीन का H will be replaced by Cl. तो यहाँ पे आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा? रिंग will be as it is. ये CH3 का H सेफ है, वैसा का वैसा है, क्योंकि कंडीशंस पे सब रिएक्शंस डिपेंड कर रहा है. अभी ये सी मिथाइल इज एक्टिंग एज विच ग्रुप? कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है मिथाइल? See, I am expecting the answers from you all. Lecture one way नहीं होगा. मिसो निकल जाता है. कौन क्या निकल जाता है? What my question is, methyl is acting as which group? Ortho para की meta directing group? मेटा. Very good, meta. ऑर्थो पैरा. Aldehyde, ketones, carboxylic acid, they are
acting as meta, rest all groups are ortho and para directing groups. तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होने के कारण यहाँ पे भी Cl अटैच हो सकता है, या आपको कंपाउंड मिलेगा दिस. अभी Cl कहाँ पे जाएगा? पैरा पोजीशन में, प्लस 2HCl. रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, नो डाउट. आर यू अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन और नॉट? ये समझा आपको? ये दिस रिएक्शन यू हैव स्टडीड इन द टॉपिक HDA. उसमें क्या हुआ था, ये वाला H रिप्लेस हो गया Cl से. बट अगर फिर से हम ये एग्जाम्स में ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आता है. You need to see the conditions properly. If I'm giving you toluene, again I'm doing the chlorination reaction, but now I'm changing the condition. I'm putting sunlight here, or they can put H nu, दोनों चलेगा. So अभी क्या होगा students, whether you're going to replace H of benzene ring or methyl group? Methyl group. Yes. Now try. Now the H of methyl group will be replaced and not benzene ring, because sunlight आ गया. Catalyst in presence of dark condition आ गया, तो ये H रिप्लेस करना है ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन का. बट अभी ये केस में ये वाला ही H रिप्लेस करना है. तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा? दिस रिंग इज एज इट इज, और क्या बनेगा? CH2Cl. कैन एनीवन टेल मी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Yes, tell me the common name. Benzene chloride. No, it is not benzene chloride. Look at the structure properly. Benzene को जब भी CH2 group attach होता है तभी what I have said, which word you are going to? Benzyl chloride. Very good. It is benzyl chloride. बेंजाइल बेंजोइल सब बताया था. तो पहला स्टेप में बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म होता है. अभी फिर से बेंजीन का क्लोरीनेशन करो, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड का. इफ आई एम डूइंग द क्लोरीनेशन, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? If I'm doing the chlorination, again one H of this group will be substituted by Cl. तो benzene ring is as it is, CH is as it is, और यहाँ पे आपको मिलेगा Cl2. तो the name of this compound is benzyl chloride. This is benzyl, this is Al, benzyl chloride. अभी the reaction से जैसे अपने इटार्ड में देखा था, using chromyl chloride या using acetic anhydride. If you remember that reaction, अपन ने सिर्फ दो ही H दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट किया था. एक H को आपको वैसा ही रखना है. तो even in this case एक H वैसा ही रहेगा. अभी now if I am doing the hydrolysis, acid hydrolysis of this product at 373 Kelvin, टेम्परेचर याद रहा तो भी ठीक, नहीं याद रहा तो भी ठीक, बट एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा? Where the hydrolysis is going to take place? What you are going to substitute? It is a nucleophilic substitution kind of reaction. क्या substitute होगा यहाँ पे? Cl. Yes, Cl के जगह पे कौन आएगा? Very good. OH आएगा. तो twice होता है हाइड्रोलिसिस. अभी यहाँ पे अपना CH तो as it is है, 2 Cl2 है, तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप आएगा. एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप रह सकता है क्या? No, it is highly unstable in nature. तो उसको अभी ये OH ग्रुप को एज अ वाटर करके आपको निकालना है. तो ये OH ग्रुप को तो निकालना ही है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड. तो सेम वे हर रिएक्शन में बताया गया था, O और H का बॉन्ड अगर यहाँ पे फॉल आउट हो रहा है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया है इसलिए उस पे पॉजिटिव चार्ज. तो ये कार्बन का बैलेंस ही 1 2 3 और ये पिंक में नया 4th फॉर्म हो रहा है. तो ये कार्बन को किसी एक ग्रुप को जाना देना है, या तो हाइड्रोजन या तो फिनाइल या तो OH. And we know कि functional group act as good leaving group. So in this case, OH will take the bond and go, and the charge on OH will be minus because it is taking the electrons. तो H पे positive charge, OH पे negative charge. तो water चला गया, तो आपको compound क्या मिलेगा?
Which group will come then? Benzaldehyde. Yes, double bond. यहाँ पे double bond O आ गया and H यहाँ पे I'm putting it out, so you'll get benzaldehyde. Hope this reaction is clear with you. टोलिन का दो रिएक्शंस हो रहा है, एक HDA में आपने देखा रहेगा. दिस इज so toluene you can convert it into orthochloro and parachlorotoluene, as well as you can convert toluene to benzaldehyde using chlorination reactions, but it depends upon the product कौन सा form होगा, it depends upon the conditions. Clear? Now the last reaction of the topic, see, in the starting only I have said aldehyde, ketones and carboxylic acid, उसका वेटेज भी ज्यादा है, उतना ही रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा है ये टॉपिक में. Now the last hydrocarbons वाला preparation of ketone we'll see. Okay. Can anyone tell me benzene to ketone कैसा क्या करोगे आप, कौन सा रिएक्शन करोगे? चलो, I'm drawing the structure here for you. This is benzene ring. I want you to convert it into this ketone. क्या reagent use होगा? No, Akansha, oxidation. Oxygen कहाँ से ऐड करोगे आप? How come the reaction is oxidation? Think on it ना, कौन सा कंपाउंड बेंजीन को कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है? Yes, Abhirami, what do you think? Abhirami. Hello. हाँ, benzene to this compound. How you going to convert? Which reagent you will use? Any idea? मैम क्लोरीन. हाँ, Cl तो चाहिए, बट रिएजेंट का नाम बताओ ना, कौन सा ग्रुप रहेगा? Think of it. अगर if they are asking you to convert benzene into this product, तो which reagent you can use? अगर Gatterman Koch आपको समझ में आ गया तो ये भी तो आना चाहिए. रिएजेंट का नाम पता है? एसिटिल क्लोराइड. Yes, acetyl chloride. What is the structure of acetyl chloride? बोलो. Yes, Balaji, tell me the structure of acetyl chloride. मैम C double bond OH. Okay, C double bond OH. और it is acetyl chloride. कितना बार मैंने बोला एसिड ग्रुप कब यूज करना है, कौन सा स्ट्रक्चर को एसिड बोलते हो, कौन सा स्ट्रक्चर को एसिड बोलते हो आप? ओके वाला जी बोल. हाँ, CH3COCl. This group is known as acid. तो अभी if I am telling the word acetyl chloride, तो ग्रुप कौन सा आएगा? Yes, you're right. It is CH3 C double bond OCl. And anyone knows the name of the reaction? It is one of the name reaction जो आप 11th standard से study करते आ रहे हो. कौन सा name reaction? Very good. It is Friedel-Crafts. Acetylation और असाइलेशन दोनों सेम है, वन एंड द सेम. एसिटिल ग्रुप को ही असाइल ग्रुप भी बोलते हैं. सो दिस रिएक्शन इवन अनहाइड्रस AlCl3 लगेगा प्लस HCl विल बी गिवन आउट.
अभी किसी को याद है, if I don't want to use acetyl chloride, one more reagent we can use in Friedel-Crafts acetylation or acylation. What is the name of that reagent? Acetic anhydride. Very good. It is acetic anhydride. And the formula is CH3C double bond O. ये 2 बार आता है और ये ऑक्सीजन को कनेक्टेड रहता है. So this is known as acetic anhydride. Clear with this? If you want to prepare ketones, so the starting compound is benzene. अगर बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड बोला तो कन्वर्जन क्या होगा? Convert benzene to benzaldehyde. So which reagent you are going to use? फॉर्माइल क्लोराइड. Reagent बताओ. मैम वही CH3 की जगह पे H लगेगा ना? वही CH3 की जगह पे H लगेगा, बट वो H कैसे लगेगा? मैंने क्या बोला कि I want the reagent, name of the reagent. अगर benzene to benzaldehyde, वो तो उन्होंने आंसर में ही आपको बता दिया कि benzene to Tanmay, how come NaOH you will use in that reaction? Okay, if the question is convert benzene to benzaldehyde, tell me the conversion, how you are going to convert it out? See, benzene का तो structure हर किसी को पता है कि benzene is this. Benzaldehyde, if they are telling तो benzene को aldehyde group attach हो गया. अभी इसको इसमें convert करना है तो reagent क्या use होगा? AlCl3. Any other answer? Yes, Tanmay, you are right. It is carbon monoxide in presence of HCl. कौन सा रिएक्शन है ये? कौन सा रिएक्शन है? Yes, so see the whole marks which they are going to give you, अगर 1 या 2 मार्क का रिएक्शन आता है तो इसके ऊपर ही वो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो कोई भी ड्रॉ करेगा और बेंजल्डिहाइड सिर्फ इतना एरो करके ड्रॉ करके रख दिया मतलब आपको मार्क्स मिलने वाला है क्या? तो यू आर सपोज टू गिव यू द रिएजेंट्स कि कौन सा कन्वर्जन. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl and AlCl3 gives you benzaldehyde. The name of this reaction is Gattermann-Koch reaction. If they are asking you toluene to benzaldehyde, तो क्या कन्वर्जन कर सकते हो आप? toluene to benzaldehyde. Yes, Karthik, tell me the answer. अगर toluene to benzaldehyde बोला तो कौन सा रिएजेंट आप यूज कर सकते हो? Karthik, tell me the answer. Anyone knows? Other? Chromyl chloride. Very good. Chromyl chloride use कर सकते हो. So what is the name of that reagent? Sorry, structure of that reagent? Chromyl chloride. Cr bond O, Yeah. double bond O, single bond Cl. Cl2. Okay, very good. और क्रोमिल क्लोराइड और क्या कंडीशन कुछ लगेगा? क्रोमिल क्लोराइड अगर आप यूज कर रहे हो तो सॉल्वेंट फाइड के साथ. वेरी गुड. कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ और आगे उसका हाइड्रोलिसिस करना है और आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा. वेरी गुड. एनी अदर वे टोलिन टू बेंजल्डिहाइड कन्वर्शन करना है तो कोई और रिएजेंट आप यूज कर सकते हो? Yes, Akansha, what do you think? मैम अनहाइड्राइड यूज करके. कौन सा अनहाइड्राइड? एसिटिक अनहाइड्राइड. वेरी गुड. We can even do the conversion. किसी को लगेगा क्रोमिल क्लोराइड यूज. सी यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है तो you can use any reagent. तो आप एसिटिक अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो in presence of chromium trichloride and the temperature is 273 to 283 Kelvin. और एक conversion और एक reagent. Amla? Ma'am, Cl2 in presence of sunlight.
Very good. Cl2 in presence of sunlight. Electrolysis. So toluene to benzaldehyde, you can convert it using presence of chromyl chloride or acetic anhydride या chlorination करो, but condition लिखना compulsory है, that is sunlight. Clear students? So usually एक chart prepare करो toluene to benzaldehyde conversion. So ये सब reagent benzene to benzaldehyde तो carbon monoxide in presence of HCl and AlCl3. Benzene to acid. Okay, what is the name of this compound? What is the name of this compound? This कौन सा compound? ये वाला. Acetophenone. Acetophenone. Very good. It is known as acetophenone. So benzene to acetophenone बोला. Ketone का एक ही reaction है. That is Friedel-Crafts acylation. Clear? एक पहला ये solve करो. Then we'll move further. Last method of preparation of मुझे एक बार वो पेज दिखाओ ना. Okay. ओके. Done? हाँ मिस. Okay. ये रिएक्शन कंप्लीट करो. Identify A in this compound. Aman, you are going to tell me the answer. Yes, miss. क्या मिला आंसर? पहला बेंजीन को फर्स्ट आपने किसके साथ रिएक्ट किया? मुझे पूछ रहे हो? यस, आपसे ही पूछ रही हूँ. मिस ये पहले ना वो CHCl से हम लोग को टोलुइन मिलेगा. क्या मिलेगा? टोलिन. वेरी गुड. सो इट टोलुइन इज फ्रेडल, हाँ, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन. बराबर, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, राइट. एंड फिर सेकंड रिएजेंट मैंने क्या बोला? व्हाट आई हैव रिटन? सेकंड वाला आपने ये एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है शायद. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. हाँ, तो आपको क्या मिलेगा? तो मिस उसके साथ ना वो ऑक्सीडाइज होके ऊपर CHO ग्रुप दे देगा और टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा. Very good. So the A is benzaldehyde. So first reaction was Friedel-Crafts alkylation reaction and the second reaction was Itard reaction. नहीं, Itard नहीं, दूसरा वाला, right? Itard के next वाला जो अपन ने देखा. Very good. Benzaldehyde. So they can ask you the question कि benzene to benzaldehyde भी कैसे convert करना है. And the last method of preparation is only we can prepare aldehyde using this method. Preparation of aldehyde only
using ester. Okay, what is the general representation of ester? How you are representing it? जनरल रिप्रेजेंटेशन ईस्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? RC double bond O single bond O. Yes, RC double bond O single bond OR. So this is the general representation of ester. I want to prepare aldehyde from ester. Clear? Agar I want is the aldehyde functional group is RC double bond OH. See now students try to understand ester to aldehyde conversion करना है. तो ये दोनों structures में what is the difference in presence in place of OR H group is coming H. तो यहाँ पे आप कौन सा रिएक्शन करोगे? Which reaction you can do? ऑक्सीडेशन करके होगा, क्या होगा? एलिमिनेशन, एडिशन, रिडक्शन, क्या हो सकता है? रिडक्शन. वेरी गुड, इट विल बी रिडक्शन रिएक्शन. नाउ इन दिस प्लेस यहाँ पे सेम वे स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे अपन ने वो वहां पे देखा था, इट इज डीबाल एच. किसी को याद है इसका फुल फॉर्म क्या है? बोलो. Diisobutyl aluminum hydride. Very good. It is diisobutyl aluminum hydride. अगर if we are carrying out the reduction of ester in presence of a special reducing agent that is diisobutyl aluminum hydride followed by hydrolysis तो आपको जाके मिलेगा aldehyde. See reduction मतलब यहाँ पे ये group break होगा H तो यहाँ पे अल्कोहल तो मिलेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल नो डाउट. आई एम पुटिंग इट एज R डैश सो दैट कंफ्यूजन अवॉइड होगा. सो यहाँ पे R डैश OH मिलेगा. So you'll get aldehyde as well as R dash. See अगर यहाँ पे if I'm not using this special reagent, यहाँ पे कोई तो भी normal reducing agent आपने use किया तो क्या drawback हो सकता है? क्यों यहाँ पे D/L that is diisobutyl aluminum hydride use करना है? क्या हो सकता है फर्दर अगर ये reducing agent नहीं यूज किया, कोई normal reducing agent यूज किया तो? नॉर्मल सबको रिड्यूस कर देगा. हाँ सबको रिड्यूस कर देगा मतलब वो अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा. अल्डिहाइड को किस में रिड्यूस करेगा? OH that is alcohol में. Are you getting? So ester too, we don't want two molecules of alcohol, we want aldehyde as a ending compound. So in this place we can't use a normal reducing agent, we need some special reducing agent, and the special reducing agent is diisobutyl aluminum hydride. It only reduces ester to aldehyde. aldehyde का further reduction primary alcohol में नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन 195 केल्विन में ही प्लेस करना है. तो इसको भी मार्क्स से एग्जाम में फॉर द टेम्परेचर. यूजुअली वी आर नॉट गिविंग मार्क्स टू टेम्परेचर. नहीं भी टेम्परेचर लिखा होता है तो भी चलता है, बट कोई स्पेशल रिएक्शंस होता है जिसमें टेम्परेचर is important. So यहाँ पे you'll make it out कि 195 compulsory लिखना है. ester to aldehyde convert कर रहे हो तो. Carry out the reaction and tell me the final products of this reaction. Starting ester का भी नाम बताओ. ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट करो. मिस किसका नाम बताने बोला? ये वाला ओके ये मिस.
किसी को नाम मिला ये कंपाउंड का, स्टार्टिंग कंपाउंड? सी ईस्टर के केस में हमेशा जो O के साथ ग्रुप होता है उसका नाम पहला आता है. नाउ थिंक ऑफ इट. नो, एसिटोफेनोन नहीं. मिथाइल फिनाइल एस्टर. मिथाइल फिनाइल नहीं. यस आशुतोष, Yes, miss. टेल मी द आंसर. नाम पता है आपको इसका? O के साथ कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? O को किसने अटैच किया है? कार्बन ने. कार्बन मुझे भी पता है, कार्बन ने. हाँ. ये ग्रुप का नाम बताओ. कार्बोनिल ग्रुप. ये वाला ग्रुप, ये साइड का. मिथाइल मिथाइल. हाँ. तो O के साथ अल्काइल ग्रुप कौन सा ज्वाइंट हुआ है? मिथाइल. तो उसका नाम पहला आएगा. अभी नाम ट्राई करो. मेथॉक्सी. मेथॉक्सी. वेरी गुड ओमकार. इट इज, यू हैव सेड द राइट नेम. आशुतोष क्या आएगा नाम? डोंट सी इनटू द चैट बॉक्स एंड टेल मी द नेम. यू हैव टू जस्टिफाई इट. ओके, O के साथ कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, राइट? सो यू हैव सेड द नेम मिथाइल. यस और नो? यस. हाँ. अब ये बाकी का जो ग्रुप है, दिस इज बेंजीन रिंग, राइट? और उसको Yes. 8 ग्रुप ने अटैच किया है. तो ईस्टर में O8 आता है हमेशा. तो इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल बेंजीनोएट या बेंजोएट, दोनों चलेगा. क्लियर? यस मिस. क्या मिला आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे? इफ यू आर यूजिंग दिस रिएजेंट, तो कौन सा अल्डिहाइड मिला और कौन सा अल्कोहल मिला? मिथाइल, मेथनॉल और बेंजाल्डिहाइड. वेरी गुड. बेंजाल्डिहाइड एंड मिथाइल. ओके, नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन. Okay, what is the structure of methyl ethanoate? O के साथ कौन सा ग्रुप अटैच रहेगा? मिथाइल. Yes, we know the structure of ester is ये वाला ग्रुप होना चाहिए, तो ईस्टर बनेगा. तो O के साथ मिथाइल ग्रुप तो अटैच हो गया. इफ आई एम टेलिंग इथेनोएट, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? इथेन. इथेन नहीं आएगा, ये कार्बन को भी इंक्लूड करना है. तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा? CH3. हाँ, CH3. क्लियर? सी ये दो कार्बन, इथेन, E is replaced by O. This is your parent chain, दो कार्बन का. So E is replaced by O8 and O के साथ मिथाइल है. So the name becomes methyl ethanoate. If they are telling methyl propionate, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आता था? इथाइल. वेरी गुड, इथाइल. अभी कन्वर्ट करो. मिस ऊपर वाले में तो ऐसा नहीं किया. क्या नहीं किया? ऊपर वाले में बेंजीनोएट लिखा है आपने. हाँ, तो ये बेंजीन था ना, उसको थोड़ी मैं स्प्लिट अप करूंगी, कार्बन काउंट्स करूंगी. यहाँ पे हाँ बोलो, क्या डाउट है आपका? बच गया जो कार्बोनिल वाला कार्बन बच गया. सी ये ग्रुप मिथाइल आपने बोला, रेस्टॉल ग्रुप तो सी बेंजीनोएट हो गया. इसको स्प्लिट अप नहीं कर सकते हो ना आप. सी बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजोइक एसिड डबल बॉन्ड बेंजीन C डबल OH. बराबर. यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया समझो कोई रिएक्शन में, तो आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O माइनस रहेगा. यस और नो? हाँ. तो ये O8 वाला स्ट्रक्चर है, तो वी डायरेक्टली वी कॉल इट एज बेंजीनोएट. O8 है, C डबल बॉन्ड O माइनस, इस एसिड. इन द सेम वे सी इसका मैंने ये व्हाट आई हैव सेड IUPAC बोला. अगर इसका कॉमन नेम मुझे देना होता तो मैं इसका कॉमन नेम दूंगी मिथाइल एसिटेट, अनदर नेम फॉर इट. तो इसका कॉमन नेम ही IUPAC में एक्सेप्टेड है, दैट इज बेंजीनोएट. ओके मिस. या
हाँ, do the conversion. कौन सा aldehyde alcohol और ये मिलेगा. Which reagent you are going to? Yes, Omkar, it is right. Acetaldehyde. हाँ, acetaldehyde H plus alcohol, that is CH3OH. But यहाँ पे the marks will be totally given to this reagent, and the reagent used in this reaction is D/L, that is diisobutyl aluminum hydride and hydrolysis, and the condition is 195 Kelvin. So is the method of preparations clear with you all? Any doubt? कोई डाउट है? मेथड सी एरोमेटिक अलग से ही है टोटली, तो आप अलग से ही नोट्स बनाओ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का. हियर वी आर फ्रॉम टोलिन. आप एक साथ चार्ट बना सकते हो. टोलिन का रिएक्शंस एक साथ लिखो जैसा मैंने यहाँ पे दिया है. तो बेंजीन टू कीटोन कैसे जाना है, या बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड कैसे जाना है, प्रिपेयर इन अ सिंगल नोट so that it will be easy for you to correlate. So this was from hydrocarbons. Rest all reactions. Any doubt in the reactions? हम अल्कोहल नहीं, मैंने फिनॉल का बनाया. will give you out. अल्कोहल का आपको बनाना है ईशा. Okay. Students, do you have any doubt in method of preparations part? So we'll start with the next year. See, method of preparations completed. We are going to start with the next topic, that is physical properties. Physical and chemical properties. So these properties we'll see in the next class. Clear? Okay, so we'll stop here. Hello. Yes, miss. Okay, fine. Thank you so much. Thank you, miss.